Hi guys, good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to do a very special writing which is not going to be difficult at all, but just about sometimes you might feel that there is some kind of difficulty, but trust me, if you will listen to this video till the end, you will realize again that OET writing is the easiest module to pass. If any module is easy in वैसे तो all the modules are easy, but the easiest one I would say is writing. And please try to understand the basics of writing. There are certain things about each and every writing which is not easy, so please do not include that. मतलब अगर आपको कोई भी मुश्किल लग रहा है, please do not make it a part of your writing answer sheet. उसे क्वेश्चन पेपर में ही रहने दो. If there is something that you are unable to understand, प्लीज उसको वहीं पे छोड़ दो. एंड प्लीज वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ डॉक्टर बीकेएम till end. And now I'm going to start the coaching. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and we'll discuss about the writing. Our contact number is 76967 34256 for the best OET coaching. Again, Dr. BKM is all about resolving the question paper. This question paper has been created by MedCity, so thanks to that institute. But yeah, my job is to give you the best answer. So let me prepare an answer sheet for you, and for that I would be requiring my pages. I'm just going to take my pages in. Yeah, so here it is. Sorry. Okay, so I'm just going to take those pages, and now I will go to the writing and we will do it in the most simple way. Always जो भी आज चाहे आपकी मतलब if you are my YouTube follower, if this is your first video, please watch this video till end. If otherwise you are my student, obviously I would be expecting you to watch at least 2-3 times. So again, write a referral letter. To always start the letter from the end so that you can know to whom you are writing the letter. Write a referral letter to Mr. Roger Williams, emergency doctor. So basically he is a doctor, Dr. Roger Williams, emergency doctor. Casualty means emergency में अटेंड करता होगा, वैसे भी emergency doctor है. A casualty सेंट पीटर्स हॉस्पिटल, न्यू साउथ वेल्स फॉर एन emergency assessment. यानी पेशेंट को हम भेज रहे हैं emergency assessment और मैनेजमेंट के लिए. अगर आपको सर पर्पस तो आपको यहीं से क्लियर हो जाता है कि दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर मैकुने हु इज बीइंग रेफर्ड टू योर हॉस्पिटल या रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज फॉर इमरजेंसी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट. आप सोचो पर्पस लिखना कितना आसान है यहीं से, कि अगर मुझे ये पर्पस लिखना हो सो आई कैन सिंपली राइट. प्लीज देखिए कितना आसान है ओईटी, बस कॉम्प्लेक्स मत करो. दिस लेटर, आई विल टेल यू कितना आसान है. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर मैकुने, एम कैपिटल, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी. मिस्टर मैकुने हु इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज फॉर इमरजेंसी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट. असेसमेंट का मतलब है, यानी इसका मतलब ऑब्वियसली है कि इसकी डायग्नोसिस नहीं हुई है, तभी तो उसको असेस करना है पेशेंट को दोबारा और मैनेज करना है. कितना सिंपल है देखो. दिस इज ओईटी. दैट इज व्हाई आई से यार इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं. क्वेश्चन पेपर आपको डराएगा, जैसे आप अभी देखोगे डरोगे, लेकिन आंसर आपका इतना सिंपल होना चाहिए. दिस इज ओईटी. जितना सिंपल आप बनाओगे. अब देखो, आप इमरजेंसी डॉक्टर को लिख रहे हो, फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस तो आपने बता दिया सर एक पेशेंट भेज रहे हैं आपके पास इमरजेंसी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए. खत्म. टुडे विजिट इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट. 14/3/2020 हम कौन है. वी आर अ कम्युनिटी नर्स वर्किंग इन अ कम्युनिटी सेंटर. तो ये 14th को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आया है, यानी यहीं पे 14th को वो हमारे कम्युनिटी सेंटर पे आया है चेकअप के लिए. हमने उसे असेस किया. वी हैव असेस्ड द पेशेंट एंड हिस्ट्री हैज बीन कलेक्टेड. क्लोज कॉन्टेक्ट विद द चाइनीज टूरिस्ट अर्लियर, सजेस्टिव सिम्टम्स ऑफ कोविड-19. तो मुझे पता लग गया दैट पेशेंट इज, क्वेश्चन मार्क का मतलब सस्पेक्टेड. सो पेशेंट इज सस्पेक्टेड विद कोविड-19. अगर मैं, I want to make this letter even better. First paragraph, the only thing I need to say, who is suspected with COVID-19 and COVID-19. Therefore, दो लाइनों को लग कर दिया. Therefore, he is being referred under. अब ये लेटर परफेक्ट हो गया. अब ये पर्पस बिल्कुल ही क्लियर हो गया
कि सस्पेक्टेड है कोविड-19 के साथ, इसकी जगह आप हैज बीन भी लिख सकते हो, हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद COVID-19, therefore he is being referred for emergency assessment and management. अब ये लेटर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो जो टुडे विजिट होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होती है। सो टुडे विजिट में ही मेन रीजन लिखा होता है, टुडे विजिट में ही मेन रीजन होता है। तो पूरा मत लिखो, बस मेन बात बता दो कि ही इज सस्पेक्टेड विद कोविड-19 एंड हेंस इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर इमरजेंसी। फोर वर्ड लगाया है, बाकी सब फॉर इमरजेंसी। अगर एन लिखना है तो सेम लिख दो, फॉर एन इमरजेंसी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया है। कोई बात नहीं, ऑल गुड। अब देखो, अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारा डाटा वुड बी अकॉर्डिंग टू कोविड, सारा डाटा वुड बी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर इन द इमरजेंसी वार्ड, उसको कोविड के लिए क्या क्या डाटा भेजना है, दैट इज योर प्राइमरी कंसर्न नाउ। सो बेसिकली यहां से चलो एंड अब फर्स्ट लास्ट विजिट के बाद बिल्कुल शुरू से शुरू कर दो। नाउ फर्स्ट, डॉक्टर मिस्टर मैकू ने 42 ईयर्स ओल्ड, विल्सन स्ट्रीट, टुडेज डेट 14th, हाँ 14th मार्च, ये तो हमें पता ही है 14th मार्च। पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, अब देखो कोविड के हिसाब से एजमा, डायबिटीज, ये दोनों बताने जरूरी हैं। मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कोर्टिकोस्टेरॉइड लेता है, ये तो बताना जरूरी है। ह्यूमन मिक्सड, हैड अ माइनर फ्रैक्चर, बिल्कुल नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ऑपरेशन रिडक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, बेड रेस्ट फॉर 1 month नॉट इंपॉर्टेंट, वुंड हीलिंग नॉट इंपॉर्टेंट। सो मतलब मेडिकल हिस्ट्री में से सिर्फ 2 ही पॉइंट, एजमा, डायबिटीज एंड मेडिकेशंस, ये दो ले रहे। तो बस इतना ही लिखो। बस जैसे ही आप ज्यादा लिखोगे आप ट्रबल में हो, कम लिखोगे आप बिल्कुल ट्रबल में नहीं, इज अ नॉन केस हो। जितना कम लिखोगे उतने आप सेफ हो, यही तो ओईटी है, द इजीएस्ट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द राइटिंग। सो केस ऑफ एजमा एंड डायबिटीज mellitus, एजमा एंड डायबिटीज mellitus, जो भी स्पेलिंग है। ही इज ऑन medications, अलग लाइन लिख दो, he is on corticosteroids and also takes ह्यूमन मिक्सड, ये जो भी होता है मुझे पता नहीं है क्या होता है, सो व्हाई शुड आई लाई यू, जो लिखा है वही लिख दिया हमने भी, जो मेडिकेशन लेता है वो लिख दिया, ह्यूमन मिक्सड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सोशल हिस्ट्री, लिव्स विद हिज गर्लफ्रेंड, नो फैमिली नियर बाय, क्रोनिक स्मोकर, एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन। तो इनमें से एक बात है, his his social history reveals that he is a chronic smoker, बिल्कुल सिंपल यार, बाद में फ्लो बना लेंगे हम लेटर का। he is a chronic smoker and drinks excessively, खत्म। सोशल हिस्ट्री, सिर्फ वही चीज, अगेन देखो मेरा डाटा सिलेक्शन क्या कर रहा हूँ, आप काम को मुश्किल करते हो सब कुछ लिख के, मैंने डाटा सिलेक्शन में आसान भी कर दिया और लिखा भी वही जो सिर्फ चाहिए। अब यहाँ पे ये लेटर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वेन एवर देर इज अ विजिट लेटर, इट अपीयर्स कि उसने विजिट किया है, लेकिन अगर आप इस लेटर को ध्यान से देखोगे ना, दिस इज व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस लेटर, यहाँ पे कोई विजिट नहीं है। जब आप इस लेटर को ध्यान से देखोगे ना, तो पेशेंट की सिम्टम है ब्रेथलेसनेस, इनहेलर, टायर्ड, अपने आप मेडिकेशन कह रहा है, टुक एंटीपायरेटिक्स, टुक का मतलब यही है अपने आप ली, यूज्ड का मतलब अपने आप यूज किया, कहीं पे भी वॉज नहीं दिया हुआ, वॉज गिवन नहीं दिया हुआ। अगर यही तो टेंसेस होते हैं, अगर हमारे द्वारा दिया होता तो यही तो मैं आपको सिखाता हूँ, पैसिव में होता वॉज गिवन, लेकिन यहाँ पे लिखा है यूज्ड, सेकंड फॉर्म दिया है यूज्ड, फिर लिखा है टुक एंटीपायरेटिक्स, मतलब ये सब कुछ ये अपने आप ले रहा है, 9th को भी अपने आप ले रहा है, 10th को भी अपने आप ले रहा है, 12th को इसका फीवर कम हो गया, 13th को फिर दोबारा टेम्परेचर हो गया, फिर इसने कोविड-19 की न्यूज सुनी और अचानक से इसको कॉशियस हो गया, कॉशियस होते ही ये टुडे ही हैज विजिटेड अवर कम्युनिटी सेंटर। तो कहानी ये है कि अभी तक तो इसने विजिट ही नहीं किया था, बस आधे से ज्यादा बच्चे तो यहीं पे फेल हो जाते हैं जब इसको लिख जाते हैं ऑन फर्स्ट विजिट, वहीं पे पेपर खत्म, 230, 240, 260, 280, क्योंकि आपने पर्पस ही गलत लिख दिया, आपने जैसे ही फर्स्ट विजिट वर्ड लिखा गड़बड़। इसीलिए दिस इज द बेस्ट लेटर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, कि इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए, ओईटी में गलतियों से बचने के लिए पैटर्न ही यही फॉलो करो ऑन 3 मार्च। अब चाहे विजिट हो चाहे विजिट नहीं हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस ऑन 9th मार्च, सॉरी।
चाहे विजिट थी चाहे विजिट नहीं थी, वेदर ही केम टू कम्युनिटी सेंटर और ही डिड नॉट, वेदर वी वेंट टू हिज होम और डिड नॉट, चाहे आप उसके घर गए चाहे नहीं गए, उसने विजिट किया या नहीं किया, आप अगर सिंपल लिखोगे तो आप सेफ रहोगे। ऑन 9th मार्च पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हुई अराउंड 9 PM, सो ही यूज्ड इनहेलर एंड गॉट रिलीव। बस सिंपल। ऑन 9th March 2020 the patient suffered from breathlessness, so he took inhaler। कनेक्टर लगाना सीखो, ये प्रॉब्लम हुई इसलिए breathlessness, so he took inhaler and got relieved। अब यही मेन चीज सिखानी है मेरे को आपको ग्रामर में। उसने अपने आप लिया सेकंड फॉर्म, अपने आप सफर किया सेकंड फॉर्म, और रिलीव हो गया गेट की सेकंड फॉर्म गोट। कहीं पे भी वॉज का यूज नहीं किया। वॉज का यूज करते ही वो पैसिव बन जाता है, तो वो नहीं करना। प्लीज यही समझना है, पैसिव नहीं बनाना। ऑल्सो, और ये सॉरी, ये टेक्स में ऐसा ना था, यहाँ पे ड्रिंक्स में एस लगाया, हाँ। ही के साथ टेक्स, ही के साथ ड्रिंक्स। तो ये ग्रामर का ध्यान रखना होता है कि एस ना मिस हो जाए। ही शीट के साथ एस लगता है, ही गोज, शी गोज, ही डज नॉट स्मोक, ही ड्रिंक्स, ही टेक्स। तो ये छोटी छोटी बातें बस। ऑन 9th मार्च को फिर क्या हुआ, 10th को हमेशा लिखो द फॉलोइंग डे। ही वॉज टायर्ड, लिथार्जिक, हैड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, सो अनेबल टू एंटीबायोटिक्स। सो सब कुछ मत लिखो, द फॉलोइंग डे ही हैड, सब कुछ मत लिखो प्लीज। सिवियर टेम्परेचर। डॉक्टर को आज सिर्फ कोविड-19 का पता करना है, प्लीज समझो, ये पास्ट वाले इतने जरूरी नहीं है। अगर मैं ये भी नहीं लिखूं ना, एंड वाज अनेबल टू गेट आउट ऑफ बेड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं, ही हैड सीवियर टेम्परेचर, सो ही टुक एंटीपायरेटिक्स। बस मेन बात यह है कि 9th को ब्रेथलेसनेस थी, इनहेलर लिया। 10th को टेम्परेचर था, एंटीपायरेटिक्स ली। डॉक्टर को पता ही है टेम्परेचर होगा तो टायर्ड और लिथार्जिक होगा, समझो। ऑन 12th मार्च, यानी कि 9th 10th 11th 12th, यानी फोर्थ डे, ऑन 12th मार्च फीवर गोट सेटल्ड, अपने आप हो गया तो गोट, वॉज नहीं लगाना, फीवर गोट सेटल्ड, बट ही हैड सोर थ्रोट, कफ एंड ब्रेथलेसनेस, टुक इनहेलर एंड गॉट रिलीफ। ऑन 12th, सॉरी, ऑन 12th मार्च फीवर गोट सेटल्ड, ऑन 12th मार्च। अब एंटीबायोटिक्स ली, हिज फीवर गोट सेटल्ड। सिर्फ गोट लगाते जाओ, जब एक्टिव है गोट लगाना होता है, इस फीवर गोट सेटल्ड, बट ही हैड। अब जो भी ये कनेक्टर, पॉजिटिव बात लिखी, फीवर सेटल हो गया, लेकिन उसको क्या चाहिए थी, बट ही हैड सोर थ्रोट, कफ एंड ब्रेथलेसनेस। सिंपल। ये होते हैं कनेक्टर्स छोटे छोटे, आप सोचते हो कनेक्टर्स बड़े बड़े होते हैं, नहीं नहीं। सोर थ्रोट, कफ एंड ब्रेथलेसनेस, सिंपल। चलो बस, ये सब थी। अब इसने क्या लिया, सो ही टुक इनहेलर एंड गॉट रिलीफ। अब बार बार सो अच्छा नहीं लिखता, तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाली लाइन में कर देते हैं, ही हैड सीवियर टेम्परेचर फॉर विच। फॉर विच को हमेशा ऐसी जगह पे लगाओ, सो की जगह, जहाँ पे छोटा हो लाइन, जैसे ही हैड सीवियर टेम्परेचर फॉर विच ही टुक एंटीपायरेटिक्स। तो सो की जगह आप फॉर विच लगा सकते हो कभी भी, जिसके लिए उसने एंटीपायरेटिक ली। अच्छा कनेक्टर है, दोनों तरफ कोमा, दोनों तरफ कोमा, प्लीज अच्छे से देखो। ऑन 12th मार्च ही हैड दिस देयरफॉर, क्या, फॉर, फॉर दोस, या फॉर दैट, या फॉर दो सिम्टम्स, दोज लिखना चाहता हूँ मैं उन सिम्टम्स के लिए। हिज फीवर गुड बट ही हैड सोर थ्रोट, या इकट्ठा ही कर देता हूँ, सो ही टुक एंटीपायरेटिक्स, सो ही टुक, सॉरी कौन सी मेडिकेशन लिया, इनहेलर अगेन। अब ये छोटा सा वर्ड पता है कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब नहीं लिखो तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन इफ यू वांट टू इंप्रूव योर मार्क्स, देन यू मस्ट रियलाइज कि इनहेलर पहले भी लिया था, सो ही टुक इनहेलर अगेन एंड गॉट रिलीव। अब यहाँ पे अगेन लिख देते हैं, तो यहाँ से हटा देते हैं,
ही टुक इनहेलर एंड गॉट रिलीव्ड अगेन। तो भाई फिर ठीक हो। अब देखो कितना आसान लेटर बन रहा है। टुडे आई आस्क्ड यू विच मॉड्यूल डू यू वांट टू डिस्कस, आप सबने कहा राइटिंग। राइटिंग सबसे इजी है, देखो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। बस आप मुश्किल को मत उठाओ, मुश्किल पॉइंट को मत उठाओ। 12 मार्च को ठीक हो गया, 13, आज क्या है 14, इसको जरूर सीखना है। 14 आज है टुडे, तो 13 को हमेशा यस्टरडे लिखना है। विजिट को अलग कर दो, यस्टरडे। द पेशेंट अगेन हाई टेम्परेचर, suffered again, suffered from। अगर 2 बार आ रहा है suffered from, आप चेंज करना चाहते हो तो द पेशेंट हैड, यहाँ पे सिंपल कर दिया हैड। तो ये अगेन के साथ सफर्ड वर्ड अच्छा लग रहा है, अगेन सफर्ड फ्रॉम हाई ग्रेड टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख दो जो भी टेम्परेचर था उसका 104, जो भी था डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट सॉरी, 104 डिग्री, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 3 कर देते हैं, अब हम इसको क्यों चेंज करें। सोर थ्रोट, ब्रेथलेस है, रनी नोज एंड हेडेक। अब इसमें से मेन चीज लिख दो, सफर्ड फ्रॉम दिस सोर थ्रोट एंड ब्रेथलेसनेस। बस मेन मेन लिख दो, सारे मत लिखो यार। पता ही है डॉक्टर को यार, डॉक्टर नोज एवरीथिंग, डॉक्टर को सिम्टम्स पते हैं कोविड के। ज्यादा मत लिखो, ओवर मत करो जिससे आपकी ग्रामर खराब हो, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। रेड द न्यूज अबाउट कोविड 19 एंड बिकेम कॉशियस। अब यहाँ पे कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं, दोनों बातों का एक दूसरे से कोई लेना नहीं। पेशेंट को ये सब हुआ, ही रेड द न्यूज, ये सेकंड फॉर्म है रेड। रेड का मतलब रीड, रेड, रेड। तो अगेन ये भी एक्टिव में है, पेशेंट ने अपने आप सफर किया, पेशेंट ने अपने आप पढ़ी, रेड द न्यूज, वॉज नहीं लगाया। वॉज लगाते ही वो पैसिव हो जाता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सब एक्टिव है अपने आप, ये सब कुछ अपने आप कर रहा है। इसी से पता लगता है कि ये विजिट के लिए आया ही नहीं, आज तक हमारे पास आया ही नहीं था, अपने आप ठीक कर ही जा रहा था अपने आप को। रेड द न्यूज फॉर्म एंड बिकेम कॉशियस, वही सेकंड फॉर्म, और अपने आप ही कॉशियस हो गया। अब देखो इससे अच्छा पॉइंट क्या मिलेगा मिक्स करने के लिए। देयरफॉर कॉशियस हो गया, देयरफॉर ही हैज प्रेजेंटेड टुडे। अब ये देयरफॉर ही हैज प्रेजेंटेड टुडे क्यों आया, फॉर चेकअप। अब पैसिव वॉइसेस, अब आपको तो पता है प्रेजेंट में पैसिव वॉइस वॉज थर्ड फॉर्म की जगह हैज बीन थर्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो बस वॉज की जगह हैज बीन। हिस्ट्री हैज बीन कलेक्टेड एंड असेसमेंट हैज बीन डन। हिस्ट्री डेली असेसमेंट करती है। अब तो ये मैटर नहीं करता, पर जिस टाइम पे ये लेटर बनाया था मेड सिटी वालों ने उस हिसाब से, ऑल्सो ही हैज रिपोर्टेड। जब भी कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी ना क्या वर्ड यूज करें, तो रिपोर्ट करता है पेशेंट, ऑल्सो ही हैज रिपोर्टेड दैट ही इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ चाइनीज टूरिस्ट रिसेंटली। अब तो ये बातें मैटर नहीं करती, लेकिन उस टाइम पे जब चल रही थी रिसेंटली, तो भाई अभी ये चाइनीज टूरिस्ट के कॉन्टेक्ट में भी आ गया है, और ऊपर से ये भी है, कहानी भी है। अब बिल्कुल बस आपने ये लिख दिया, देयरफॉर, देयरफॉर ही। अब बार बार सस्पेक्टेड लिखना भी अच्छा नहीं होता, आपने लिख दिया था ना यहाँ पे सस्पेक्टेड, तो यहाँ पे सीम्स वर्ड लिखो। देयरफॉर ही सीम्स टू बी अ केस ऑफ कोविड 19। अब दोबारा बार बार पूरा मत लिखो, कोविड 19 फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड। बस खत्म। अगर उससे मन ज्यादा कर रहा है तो हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड टू द इमरजेंसी वार्ड, टू योर इमरजेंसी वार्ड, टू योर कैजुअलिटी वार्ड, या टू योर वार्ड ऑन अर्जेंट बेसिस। अगर ये लास्ट लाइन लिखने का मन है तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे, सो इट वुड बी फाइन। अब देखो, टोटल आई टुक हाउ मच टाइम, बस टुडे विजिट को मैंने मिक्स किया इसके साथ।
Therefore he has presented today, बाद में कर दिया for checkup. अब देखो आप लेटर को जितनी, प्लीज रीड इट 3 times, आपको पता लगेगा आपको टोटल ना 5 मिनट्स लगेंगे 3 बार पढ़ने के लिए। पहली बारी में 2 मिनट या 2.5 मिनट, अगली बार पढ़ने में 1.5 मिनट, अगली बार पढ़ने में 1 मिनट। तो आपको समझ आएगा कि लेटर इतना सिंपल होना चाहिए कि एग्जामिनर एक ही बारी में पढ़ पाए 1 मिनट। और इतना सिंपल वर्ड काउंट भी आप बस, मैंने किया क्या प्लीज, व्हाट आई डिड डिफरेंट इज आई डिड नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच वाज डिफिकल्ट। सिर्फ आसान लिखा। ओईटी में सिर्फ यही करना है, सिर्फ आसान लिखना है अगर आपने पास होना है तो। अगर 350 चाहिए तो ये बेस्ट तरीका है। 300 नहीं, 300 पे आप पास होते हो, 350 चाहिए तो इतना सिंपल लिखना है। अब लेटर पढ़ के देखते हैं फ्लो के लिए। जब आप लेटर पेपर में कंप्लीट कर लोगे फ्लो के लिए पढ़ोगे। This letter is being written regarding Mr. McCartney, who has been suspected with COVID-19. Therefore, he is being referred under your expertise. डॉक्टर कहेगा हाँ हाँ समझ आ गया, कोविड-19 का है। मिस्टर मैकोने नॉन केस ऑफ एजमा एंड डायबिटीज है, ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेक्स दिस, हिज सोशल हिस्ट्री रिवील्स दैट क्रॉनिक स्मोकर। डॉक्टर को पता लग गया स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, डायबिटीज और एजमा। ऑन 9th March द पेशेंट हैड ब्रेथलेसनेस, सो ही टुक इनहेलर एंड गोट रिलीव। द फॉलोइंग डे ही हैड सीवियर टेम्परेचर। तो फॉलोइंग डे का मतलब 10। सीवियर टेम्परेचर, पहले ब्रेथलेसनेस हुई फिर टेम्परेचर हुआ, फॉर विच ही टुक एंटीबायोटिक्स। ऑन 12th March हिज फीवर गॉट सेटल बट ही हैड, तो फीवर एक बार ठीक हो गया था लेकिन फिर दोबारा उसे सांस की प्रॉब्लम आ रही थी। yesterday the patient again suffered from टेम्परेचर दोबारा आ गया, सोर थ्रोट, ब्लेडनेस है, सब कुछ आ गया। उसने रेड द न्यूज पढ़ी और ही बिकेम कॉशियस। देयरफॉर ही हैज प्रेजेंटेड टू आवर कम्युनिटी सेंटर। अगर थोड़ा और टुडे टू आवर कम्युनिटी सेंटर लिखना चाहते हो तो जरूरी नहीं है। सो डॉक्टर साहब हमारे पास आया तो हिस्ट्री हैज बीन कलेक्टेड एंड असेसमेंट हैज बीन डन। Also, he has reported that he is in contact with, therefore he seems to be a case of COVID-19। क्योंकि हमने असेसमेंट कर ली है हिस्ट्री के बेस पे, he seems to be therefore for which your expertise is highly required। अगर ये लिखना है तो लिखो hence he is being referred to your ward, या ये hence he is being referred to you on urgent basis। लिखना है लिखो, नहीं तो यहाँ पे भी complete है। This is how you make your OET the simplest। प्लीज लिसन टू दिस वीडियो 1 or 2 times। आई नो आपको आ गया है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान लग रहा है। अब मेरे को पता लग गया आप इंटेलिजेंट हो, फिर भी एक बार अपने हाथों से देख के लिखो। आपको ये कनेक्टर और कोमाज याद हो जाएंगे जब आप खुद देख के लिखोगे। आपको ये टुडे लिखना आ जाएगा, हैज लगाना आ जाएगा, हैज बीन लगाना आ जाएगा। पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, लिखोगे तो आपको पता लगेगा आपको कहाँ पे तकलीफ हो रही है। ये सोशल हिस्ट्री रिवील्स में जब एस लगाओगे, ये छोटी छोटी बातें टेक्स में जब एस लगाओगे, ये सीखना है आपको। इस लेवल तक की एक्सपर्टीज चाहिए, इसलिए डेप्थ में आपको जाना ही पड़ेगा। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM इंस्टीट्यूट्स। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 7696734256। फील फ्री टू कॉल अस फॉर द बेस्ट क्वालिटी कोचिंग। थैंक यू।